حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ عزیز دوستو، سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ ماضی سے آزادی پانے پر بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ماضی سے آزادی۔ یسوع آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے، وہ ہر ایک بندھن کو توڑنا چاہتا ہے، ہر رکاوٹ، ہر زنجیر جو آپ کو باندھے ہوئے ہے، ہر زنجیر جو آپ کو امید، شادمانی اور اطمینان لے کر مستقبل میں جانے سے روکتی ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ماضی سے جڑی ہوئی چیزیں ہو جن پر آپ غالب نہیں آ سکتے، اور آج وہ دن ہے جب خدا آپ کو ایک نئی تقدیر دینا چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں میری گواہی میں سنا تھا، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دے گا۔ اگر آپ اعتماد رکھیں تو وہ آپ کو ایک نیا دل دے گا۔ اور آج میں آپ کے ساتھ یسایہ 43 باب 18ویں آیت پر بات کروں گی۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو، میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ آج خدا آپ کی زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی برسوں سے زندگی میں اسی چیز سے گزر رہے ہوں، وہی دشمنی، وہی کڑواہٹ اور وہی کڑواہٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، شاید خاندان سے کوئی بہت قریبی لوگ، آپ کے دل کو بہت عزیز نے آپ کے ساتھ کچھ بہت برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ طلاق سے گزر رہے ہوں، بے رحم طلاق، میں اس سے گزری ہوں۔ آپ کے ساتھ والدین نے بدسلوکی کی ہو، وہی لوگ جن کا آپ کو بھروسہ تھا، وہی لوگ جنہیں آپ کی حفاظت کرنا تھی، آپ کی رہنمائی کرنا تھی اور آپ کے لیے ایک صحت مند ماحول بنانا اور تیار کرنا تھا، آپ کو دھوکہ دے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جسمانی یا جنسی طور پر آپ سے بدسلوکی ہوئی ہو، اور آج خدا چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یسوع آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے تاکہ آپ کی شکست کو شفا دے، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے، آپ کو آپ کی مایوسی سے شفا دے اور آپ کو نیا مقصد دے۔ لیکن اس کا ایک حصہ آپ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، ایک حصے پر آپ کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے سامنے اپنے ماضی کو پیش کرنا ہے۔ آج وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، اور یہ جسمانی شفا سے بڑھ کر ہے، یہ جذباتی شفا ہے، یہ باطنی شفا ہے۔ وہ آپ کے دل کے گہرے ترین حصے کو چھو کر شفا دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق طلاق یافتہ گھر سے ہو، آپ کے والدین کی طلاق ہو گئی ہو، آپ اس طرح کی لڑائیوں، ابتری اور مصیبت میں پروان چڑھے ہوں، اور آپ کا دل ہر وقت بھاری ہے اور آپ چیزوں کو شکستہ دل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کا ماضی مصیبت، درد اور دکھ سے بھرا ہے، تو آپ ہر چیز کو مصیبت، منفیت اور کڑواہٹ کے حادثے سے دیکھیں گے، اور خدا اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کا دھیان ماضی سے ہٹ کر حال اور مستقبل پر مرتکز ہو۔ وہ آپ کو ماضی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ آج پیدائش 19 باب سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ سدوم اور امورا نامی 2 شہر تھے، اور وہ بدکار تھے۔ وہاں کے لوگ مکار تھے، وہ نہ صرف بدکار تھے بلکہ مسلسل گناہ کرنے پر بضد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لگاتار غلط کام کرتے رہیں۔ ان کے دل سخت تھے، انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ انہیں ایک منجی کی کتنی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت تھی، لیکن انہیں نظر نہ آتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بڑی شدت سے گناہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے آج بعض لوگ اور آپ یہ پیغام سن رہے ہوں اور آپ کی ساری زندگی ایسی ہی ہو۔ مجھے ایک آدمی نے جو دہشت گرد تھا خط لکھا، اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، اس نے کچھ عورتوں کی عصمت دری کی، اور وہ سوچتا تھا کہ خدا اس کی زندگی نہیں بدل سکتا، اور وہ ماضی کی
शर्मिंदगी में रहता था और अपनी गलत हरकत की फहरिस्त बनाता था। उसने अपनी एक एक बात लिखी, उसने अपने हर एक गलत काम के बारे में लिखा, और उसके ये सब गुनाह उसकी जिंदगी पर बोझ थे। हालांकि लगता था कि वो अपनी जिंदगी पर जुर्म करता रहा, उसका मकसद सिर्फ दूसरों को कत्ल करना और तबाह करना था। उसके दिल में कुछ था, उम्मीद की एक नन्ही सी किरण। उसके सख्त दिल में नरमी की थोड़ी सी झलक थी। उसके संगीन और कातिल दिल में कुछ ऐसा था कि वो उम्मीद रख रहा था। वो एक मुनज्जी का मुंतजिर था। वो देख और पूछ रहा था, क्या हो, क्या हो कि खुदा मुझसे प्यार करे, क्या हो कि खुदा मुझे तब्दील कर दे। हो सकता है कि आज आप ये पूछ रहे हो और अपने माजी से रिहाई पाने के लिए, उसकी गैर मशरूत मोहब्बत पाने की आपके लिए ये कुंजी है। माजी के जख्मों से आजादी। आप पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप माजी में देखते रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप पीछे देखेंगे तो फिर किस तरह आगे बढ़ सकेंगे। आप मुस्तकबिल की शादमानी, इश्तियाक और उम्मीद को किस तरह मुसलसल पीछे देखते हुए देख सकते हैं। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहे कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, हर वक्त जहन में यही रखे और ये सोचते रहे कि अगर वो कभी आपके सामने आए तो आप उनको क्या क्या कहेंगे, आप उनको बताएंगे कि उनके सलूक के सबब से आज आप माफ न करने की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप अपने माजी से बंधे हैं। आप अपने माजी को बोझ की तरह उठाए हुए हैं, अपने कंधों पर टनो वजन उठाए हैं, और खुदा चाहता है कि आपको इस बोझ से आजाद कर दे। यहाँ तक कि ये आपके रंगो रूप पर असर कर रहा है। कॉन्फ्रेंसेस के दरमियान मैं आप में से बहुत से लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ कि ये आपकी सूरत में है। आप एक आदमी को देखते हैं, एक औरत को देखते हैं, आप देखते हैं कि वो अपने माजी को उठाए हुए हैं। और ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि दुश्मन आता है, अबलीस मारने आता है, चुराने और मार डालने के लिए। वो आपके माजी को इस्तेमाल करके आपका मुस्तकबिल चुराता है। हो सकता है कि आज आपका भी यही मामला हो। और उस शहर में सदूम और अमूरा में एक रास्तबाज आदमी रहता था, लेकिन उसने रहने के लिए गलत जगह का इंतखाब किया। उसका नाम लूत था और इब्राहिम उसका चचा था। बस उसका बाप इब्राहिम का भाई था और लूत ने उस बदी की जगह पर रहने का इंतखाब किया क्योंकि वो शुरू में बड़ी खूबसूरत दिखाई दी थी। उसने उस सरजमीन को देखा। अपनी बसारत से खबरदार रहे। हो सकता है कि कोई चीज बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन शायद वो आपको तबाही की तरफ ले जाए। और लूत ने उस सरजमीन को देखा और उसने उसके हुस्न के सिवा कुछ ना देखा। उसने उसे तकरीबन, खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने उसे बागे अदन की मानिंद देखा और वो खूबसूरत और खुशहाल नजर आती थी। वो खुदा की तख्लीक थी, वो खूबसूरत थी, लेकिन इंसान की बदकारी से वो लानती सरजमीन में तब्दील हो गई। हो सकता है कि आज आप मशरिक वुस्ता में रहते हो और आप हंगामों में रहते हो, लड़ाइयों में, कत्लों में, लेकिन आप ये नहीं चाहते और आप अपने गिर्द एक भी चीज नहीं बदल सकते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप एक चीज बदल सकते हैं। आज आप यीशु की पैरवी करने का फैसला कर सकते हैं और वो आपका मुस्तकबिल तब्दील कर सकता है। लेकिन आप जान लें कि वो आपका मुस्तकबिल जोरदार तरीके से बदल सकता है, इतनी खूबसूरती से कि आप अपने माजी पर इस तरह नजर करेंगे कि जैसे वो किसी और का माजी हो। या आप अपने माजी को देख सकते हैं और आप सिर्फ खुदा को जलाल देने की खातिर उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं माजी में रहा करती थी। मैं हमेशा अपने माजी की बात किया करती थी कि किस तरह मेरे वालिदैन ने मुझसे बदसलूकी की, किस तरह मेरे खावन ने बदसलूकी की और किस तरह लोगों ने मुझसे बुराई की। मैं हमेशा माजी में रहती थी। लेकिन एक दिन तक, जबकि मैं तब मसीही थी, मैं अब भी माजी में रहती थी, क्योंकि ये फैसला इस काबिल न था कि आप मसीह को अपनी जिंदगी दे दें। वो हर चीज को नया बना देता है। ये हमेशा आपको इस्तेमाल करता है कि इस पर नजर करें, और ये एक जाब्ता है, ये खुद जब्ती है। एक दिन जब खुदा ने मुझे बताया, जबकि मैं दुआ कर रही थी, तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं कर रहे, क्यों कुछ भी नहीं बदला, मेरी जिंदगी इतनी काबिल अहम क्यों है, और मैं क्यों अपनी जिंदगी में हादसों से गुजर रही हूँ। और यीशु ने आजिज़गी से फरमाया, उसने मुझसे बात की और कहा, तेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा और तुम फंसी हुई हो सकता है कि आज आप अपने हालात में फंसे हुए हो।
और तुम इसलिए अटकी हो क्योंकि तुम माजी में रहती हो, और तकरीबन हर कोई अब अपने हाल और मुस्तकबिल में अपने माजी में रहने की वजह से बदहाली की कीमत चुका रहा है। और आप देखें, मेरी सूरत पर छपा हुआ था। एक दिन मुझे याद है कि एक उधेड़ उम्र आदमी ने मेरे पास आकर कहा, मेरी बच्ची, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन तुम इतनी बदहाल क्यों नजर आती हो? क्योंकि मैं माजी से बंधी हुई जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं क्या कर सकती हूँ? उसने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि तुम माजी की बात करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपनी गवाही देते हुए अपने माजी की बात किया करो। जब तुम अपनी जिंदगी के बदलाव में मेरी भलाई बयान करनी या मुझे जलाल देना हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ उस वक्त ही माजी की बात करो, उसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तुम माजी की बात करो। और अब मैं यही करती हूँ, और मैं मुस्तकबिल की बात करती हूँ। और बाज़ औक़ात हम सब बेशक गुज़श्ता दिन किए हुए या 5 मिनट पहले किए गए काम की बात करने पर माइल होते हुए, लेकिन अगर आप खुद को वाकई मुनज़्ज़म कर लें, अगर आपके अंदर यीशु मसीह है और रूहुल कुद्स आपको कुव्वत देता है, तो फिर आप बेऐब रहते हुए किसी भी सूरत हाल से निकल सकते हैं। आप रूह में परेशान ना होंगे, आपको दुख ना होगा, और मुकम्मल मुआफ़ी, फजल और रहम से। ये मुश्किल तो होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है। उस सरजमीन पर लूत की 2 बेटियां थीं। उसकी दोनों बेटियों की 2 मर्दों के साथ शादी के लिए मंगनी हुई थी, और उसकी एक बीवी है। और खुदा उस बदकार, बदसूरत और गैर इखलाकी माहौल में रहने वाले वाहिद शख्स की फिक्र करता है, और खुदा उस वाहिद इंसान की फिक्र करता है जो रास्तबाज था। और खुदा ने 2 फरिश्तों को शख्स को आने वाली तबाही से बचाने को भेजा, ताकि सदूम और अमूरा को सफ़े हस्ती से मिटा दे। खुदा ने उन्हें भेजा क्योंकि उसे उस शख्स की फिक्र थी। अगर आज आप यीशु की पैरवी का फैसला करें, अगर आज आप फैसला करें कि अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हवाले कर दे, तो वो आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुख हो सकता है कि आप परेशानी उठाएं, शायद आपने इधर उधर बम मारे या कत्ल किए हो, और हो सकता है कि आप मगरबी दुनिया में रहते हो, आपने अपने गिर्द इसकाते हमल और कजरवी देखते हो। लेकिन अगर सच्चे खुदा के साथ आप सच्चाई पढ़ते, अगर आप अपने दिल में रूहुल कुद्स की सच्चाई में चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तारीकी कितनी दबीज है। खुदा आएगा या अपने फरिश्ते भेजेगा कि आपको बचाए, या वो आपको कुव्वत और मजबूती बख्शेगा कि आप बच निकले, मकारी से बच निकले, अपनी लत से बच जाएं, अपने नाइट क्लब से निकल आए, कस्बी पन से निकल आए, और कभी मुड़कर ना देखें, कभी शर्मिंदा ना हो। लेकिन आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा कर सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि वो आया, खुदाउल इंसान बनकर आया, सलीब पर मुआ, सलीब पर अपना लहू बहाया और आपको गुनाहों से आजादी दिलाई, इफ्जी बनकर आपको रिहाई दिलाई और गुनाहों का तावान बना। उसने कीमत चुकाई, उसने सलीब पर आपके गुनाहों की कीमत दी। हो सकता है कि आज आप इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि आपके साथ बचपन में जिस्मानी या जिनसी तौर पर बदसलूकी की गई हो या असमत दरी हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको यीशु से शिफा पाने का तजुर्बा नहीं, तो आप इसे अब भी उठाए हुए हैं। आप 60 साल के हो या 70 के। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके साथ उनके बचपन में आप हैरान होंगे कि बदसलूकी हुई हो, और वो अपनी 70 या 80 की दिहाई में अब भी उन जख्मों का निशान रखते हैं। वो अपने माजी से बंधे हैं। और आज आपके लिए मेरी दुआ है कि यीशु मसीह आएगा और आपके दिल को अपनी सकूनत का बनाएगा और आपके दिल के इंतहाई अंदरूनी हिस्सों को शिफा देना शुरू करेगा। आपको बहुत गहरे जख्मों के निशान को छुए जाने का, उसकी आजादी का, उसकी मोहब्बत का तजुर्बा होगा। बस इस
आदमी के इस सरजमीन पर रहते हुए ये दो फरिश्ते से बचाने आते हैं, उसे बचाने के लिए, और वो अमल करने में धीमा है। कलाम फरमाता है कि उन्होंने उसे उस मकाम से निकलने को कहा। हो सकता है कि आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मकाम पर हो जहां से आपको निकलने की जरूरत हो, आपको बदसलूकी की इस सूरत हाल से निकलने की जरूरत हो। बस आपको वहां से निकलने की जरूरत है और कभी मुड़कर ना देखना। और उन दो फरिश्तों ने उनसे कहा, भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। और उसे वहां से जाने का हुक्म दिया गया। वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपको पता है कि हम माहौल से बंधे होते हैं, अपनी चीजों से भी, अपनी बूदोबाश के इलाकों से जुड़े होते हैं। जब आप एक बड़ी शादी, बदसलूकी के माहौल, यहाँ तक कि हर चीज बहुत बड़ी हो, हर चीज बिखर रही हो, आप फिर भी बंधे होते हैं, क्योंकि आप इन चीजों के आदी बन जाते हैं। हम इनमें आराम महसूस करते हैं, हम माफ ना करने पर भी राजी होते हैं, हम अपने हालात में भी राजी होते हैं, हालांकि वो बहुत बुरी होती है, लेकिन हम इससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि तब्दीली हमेशा हमें डराती है, क्योंकि तब्दीली ना मालूम होती है। हमें इल्म नहीं कि तब्दीली में क्या होगा, हम बिल्कुल नहीं जानते। बस बहुत से लोगों के लिए कसम पुरसी में रहना बदलाव का सामना करने से अच्छा होता है। और हो सकता है कि आज आपकी यही हालत, और खुदा आपसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस माहौल से निकल जाओ, मैं तुम्हारे हालात बदलना चाहता हूं। और मैंने तुम्हारे हाथ उसी तरह पकड़ रखे जैसे लूत को बचाने दो फरिश्ते भेजे थे। मुझे लूत की फिक्र थी और मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ हो, तुम कितने छुपे हुए हो, जमीन पर कहाँ हो सकता है कि अदम के दरमियान में, कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, किसी को परवाह नहीं, तुम सोचते होगे, लेकिन यीशु मसीह को तुम्हारी फिक्र है। उसने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी, उसे तुम्हारी कसम पुरसी का इल्म है, उसे तुम्हारे हालात का इल्म है। शायद तुम किसी से जिक्र ना करते हो, तुम नहीं चाहते कि कोई जाने, और ये ठीक है, लेकिन यीशु तुम्हारे दिल को जानता है और तुम्हें शिफा याबी के लम्स की कितनी जरूरत है। और शायद आप बीमारी से तंग आ गए हो और थक गए हैं, और आज आपका दिन है। आपको सिर्फ ये करना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, मुस्तकबिल की तरफ देखें। जरा देखें कि पाक कलाम में खुदा आपसे क्या वादा करता है। बस मुस्तकबिल की तरफ देखें। हो सकता है कि आज आपका भाई के साथ इख्तिलाफ हो, मैं नहीं जानती कि किससे मुखातिब हूँ, लेकिन आपको अपने भाई को माफ करने में मुश्किल है। आपने उससे कभी बात नहीं की, बरसों से आपने उसे नहीं देखा। हो सकता है कि किसी बीवी या किसी शौहर को तलाक हुई हो और बरसों कड़वाहट मिली हो, और उससे आपको औरतों से नफरत हो गई, और जो आपके साथ हुआ उससे आपको मर्दों से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि आप अब भी मासी लिए हुए हो। मैं मशरिक वुस्ता जाकर लोगों के ग्रोहों से बात करती हूँ, और बाज़ औक़ात दोनों ग्रोह एक ही खुदा को मानते हैं। वो इकट्ठे बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उन इलाकों में बरसों से महवे जंग है। अरबों, इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बरसों की तारीख है। हम इस नस्ल में रह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सैकड़ों साल से कसम पुरसी और दुख में रहते हैं। मेरा ताल्लुक तुर्की से है, और मुझे याद है हम सब यूनानियों से दुश्मनी रखते हैं। हम कहा करते थे कि नहीं, उसे हमने या ईरानियों ने इजाद किया है। मेरे वालिद ने बताया कि 700 बरस हमने इनके साथ 700 बरस जंग की। क्यों? अब हम हालात जंग में नहीं, लेकिन हमने वो दुश्मनियां रखी। और अब तुर्की में ईरानी पनागुज़ीन है, शामी पनागुज़ीन है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। क्यों? क्योंकि सैकड़ों साल पहले कुछ हुआ था। आपको इल्म है कि क्यों? क्योंकि हम इस तारीख में रहते हैं, हम उस माजी में रहते हैं, और ये हमारे लिए खुदा की मर्जी नहीं। मैं आपके लिए यसाया 43 बाब की 18वीं और 19वीं आयत पढ़ूंगी। खुदा फरमाता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। वो नया काम करेगा, लेकिन आपको वो हासिल करने की जरूरत है, और सिर्फ आपको ये करना है कि उस पर ईमान रखे, उसको हासिल करे और कभी मुड़कर ना देखे। हाँ, आपका इसमें हिस्सा है। हाँ, आपको इस पर ईमान रखना है। हाँ, आपको इसमें शिराकत करनी है। सिर्फ वो ही आपको नहीं छुएगा कि तब्दीली लाए और आप कुछ ना करें। आओ और मुझे छू लो। ये उसकी आजमाइश की बात नहीं, ये उस पर भरोसा रखने की बात है, ये उससे मांगने की बात है। और जब वो इसे देना चाहे, वो दस्तयाब है, तो बस हासिल करना होगा। बहुत से लोग रिहाई पाते हैं और बाद में खो देते हैं।
वो इसे खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहाई पाते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर उस पर शक करते हैं, या वो जाकर माजी में से फिर कुछ उठा लाते हैं। और फिर वो दो फरिश्ते, उन्होंने लूत और उसकी दो बेटियों को बचाया, और उसके दो दामाद, होने वाले दामाद, लूत की बातों पर भरोसा नहीं करते। जब उसने कहा आओ चलें, तो वो उस पर हंसते हैं। जब लोगों के पास आप जैसा ईमान ना होगा तो वो आप पर हंसते हैं। बदलाव लाते हुए खबरदार रहें कि आपसे कौन मुखातिब है। खबरदार रहें कौन सी आवाज कानों में आती है, क्योंकि दुश्मन आपकी जिंदगी में कलाम करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। तुम्हारी जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं। खुदा के पास आपके लिए मंसूबे, और वो हंसते हैं, और ये मजाक का उड़ाने की रूह है। जब आप बदलाव लाना चाहें तो वो मजाक उड़ाते हैं। जब आप माजी से दूर जाना चाहते हैं, बस यहाँ ये दामाद लूत और उसकी बेटियों और उसकी बीवी के साथ नहीं जाना चाहते, और लूत अपने खानदान के साथ पहाड़ों की तरफ भागा, और फिर उसकी बीवी एक फाश गलती करती है। वो मुड़कर पीछे देखती है। जल्द ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो नमक का पहाड़ बन जाती है, वो मुर्दा बन जाती है। मेरे दोस्त, माजी में कुछ नहीं रखा। आपको अपने माजी में कुछ ना मिलेगा। यहाँ तक कि माजी की कामयाबी भी आपको खुश न करे। यहाँ तक कि माजी की अच्छी चीजें जो आपने दूसरों के लिए की आपको तसल्ली ना दे। यहाँ तक कि गुजरे कल की फतह, आज कल की फतह भी आपको खुश ना करे। आपको हर दिन नए दिन की तरह शुरू करना है, जैसे वो खुदा का तोहफा हो, उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन अगर आपके पास यीशु बतौर निजात दहिंदा और खुदावन नहीं, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं लेकिन खुदा से सजा का खौफ डरे हुए और थरथराते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ना आएगा। मैं एक ऐसे खुदा को मानती थी जो मुझे सजा देना चाहता था। जब मैं मुसलमान थी तो मैं ये ईमान रखती थी कि खुदा के पास मेरे लिए प्लान है, और वो कोई अच्छे मंसूबे ना थे। वो तो मुझे मेरी हर गलती पर सजा देना चाहता था, हर गलत काम जो मैंने किया, और वो मुझे एक बड़ी छड़ी से सजा देना चाहता था। मेरे दिल में खुदा का ऐसा ही खाका था। मैं ऐसे खुदा को माना करती थी, मुझे उस पर भरोसा ना था। मैं अपने मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीदें नहीं रख सकती थी, क्योंकि जब भी मैं कोई गलती करती तो मुझे सजा मिलने की उम्मीद होती। लेकिन आप जिस खुदा को मैं जानती हूँ, सच्चाई की रूह के जरिए, और आज मेरी आपके लिए ये दुआ है कि सच्चाई की रूह आप में हुकूमत करे, क्योंकि वो सारी सच्चाई का खुदा है, और वो आपके दिल को छुएगा, और वो आपके अंदर धोखे और झूठ को दिखाता है। ईमान के मुताबिक जो आपने माजी में झूठ बोले थे, वो आपको काम दिखाएगा जो आपने माजी में किए थे। रूह आपके दिल में काम करते हुए आपको बताएगा, आपसे बात करेगा, मेरे इल्फाज से नहीं बल्कि अपने कलाम से। मैं तुम्हें नई जिंदगी देना चाहता हूँ, मेरे पास मंसूबे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मंसूबों को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी तरक्की के मंसूबे, ना कि नुकसान पहुंचाने के। मुझे उम्मीद थी कि खुदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी उम्मीदें नौ और मुस्तकबिल के मंसूबे, और मुस्तकबिल के, ना के माजी के, और एक मुस्तकबिल के। अगर तुम मेरे तालिब हो, अगर तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो, पूरे दिल से अगर अपने खालिक को तलाश करो। मैंने अपनी मुस्लिम वालिदा को बताया, मैंने कहा मुझे इल्म है कि आपको यीशु को खुदा का बेटा मानने में बड़ी मुश्किल थी, लेकिन एक चीज से आगाज करें, अपने खालिक से दुआ करना शुरू कर दें। उससे दुआ करे कि वो इससे आप पर जाहिर करे, उसने आपको बनाया, वो आपसे प्यार करता है। अगर आप ही अकेली जमीन पर होती तो यीशु आपके लिए आकर सलीब पर जान दे देता। और आज उससे दुआ करे और कहे, ऐ सच्चे खुदा, खुद को मुझ पर जाहिर कर दे, मैं तुझे जानना चाहती हूँ। मैं माजी के जंजीरों में नहीं रहना चाहती, मैं बंधनों को नहीं चाहती, मैं माजी के बंधनों में नहीं रहना चाहती, मैं माजी की तकलीफों को अपनी सूरत पर नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हर वक्त बदहाल, मनफी और बदमिजाज नजर आऊं। मैं शादमान होना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में रूह के फल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अपनी सच्चाई से भर दे। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अपनी
शादमानी और मोहब्बत से भर दे। यीशु मसीह, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप यीशु को सिर्फ नबी मानते हैं तो आप उससे बिल्कुल नहीं जानते। जिस यीशु से मैं बात कर रही हूँ, वो यीशु जिससे मैं बात कर रही हूँ, उस यीशु से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस यीशु से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे मुसलमान मानते हैं। बस इससे मांगे, ये सिर्फ शख्सी रिश्ते से मुमकिन है। शायद हो सकता है कि आपका रिश्ता बड़ा पुराना हो, लेकिन उस सब की वजह से आपकी जिंदगी में जो वकूअ पज़ीर हो, उससे वो रिश्ता मुतासिर हुआ है। आप दुख में हैं और उसके लिए सादा दुआ काफी है। आप अपने आप को एक बार फिर से महसूस करके उसे जाकर बताना होगा, ऐ खुदा, मैं तुझे याद करता हूँ। ऐ खुदा, मुझे तेरी ख्वाहिश है और मुझे इल्म है कि तू प्यार करता है, और मुझे पता है कि तूने मुझे कभी प्यार करना कभी ना छोड़ा, और मुझे दोस्ती टूट जाने का गम है, और मैं एक बार इस दोस्ती का अहाता चाहता हूँ, और मैं गलत काम करने वालों पर मजीद इल्जाम ना लगाऊंगा। मैं उनको माफ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें माफ नहीं करता तो अब भी माजी में रहता हूँ, और मैं मजीद माजी में नहीं रहना चाहता। मैं एक नए आगाज को पाना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का नया सफा खोलना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का शफाफ बाब शुरू करना चाहता हूँ। और ए खुदा, मेरी तुझसे ये दरख्वास्त है, खुदावंद आ और मेरे गुनाह धो दे। मेरे दिल में दूसरे लोगों के लिए मनफी एहसास को धो, क्योंकि आज मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ। मैं मजीद उसे खुद पर सवार ना करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आजाद कर दे, और मदद मांगता हूँ क्योंकि मुझ में कुव्वत नहीं, मुझ में ये करने की ताकत नहीं। रुल कुद्स, मुझे तेरी कुव्वत की जरूरत है। मैं तेरे हाथों में गीली मट्टी बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू कुम्हार बने और आ और मुझे शक्ल दे, ढाल और तब्दील कर, और मुझे अपनी शबीह में तब्दील कर, मुझे अपनी सूरत में बदल। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच को अपनी सोच से बदल दे। मैं अपनी सोच में तेरी सोच चाहता हूँ। मैं अपने दिल में तेरा दिल चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में तेरा मकसद चाहता हूँ। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इधर आ। सिर्फ अपने हाथों को खोले और अपने हाथों को उसकी तरफ उठाए और मिन्नत करे, ऐ यीशु, मेरी जिंदगी में आ और मुझ में सुकूनत रख। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए मुआ। मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर खून बहाया, मेरे गुनाहों के लिए। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मर गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। मुझ पर ईमान रखने से मैं खुदा का बेटा कहला सकता हूँ। तुझ पर ईमान रखने से मैं अपनी जिंदगी पा सकता हूँ। तुझ पर ईमान रखने से मैं माजी को माजी में रख सकता हूँ। मैं लूत की बीवी की तरह कभी मुड़ कर ना देखूंगा। मैं मुस्तकबिल को देखूंगा। मैं जानता हूँ कि तू भला है और तू मेरी जिंदगी के लिए मंसूबे रखता है, और मेरे गुनाहों को माफ फरमा। मैं यीशु के नाम में तौबा करता हूँ। आमीन। फिर दोबारा मिलेंगे। पीछे मुड़कर ना देखें।